سوچتے ذہن سے ماورا انسان کی موجودہ صورتحال کو اگر ایک فکرے میں سمونا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں خیال میں گم۔ پوری انسانیت کو اس وقت سامنے رکھیں، وہ سارے مسائل سوچیں جو ایک فرد کو ہیں، جو فیملیز کو ہیں، جو معاشروں کو ہیں، جو ملکوں کو ہیں، جو دنیا کو ہیں۔ یہ مسائل اپنی بنیادی نیچر میں کیا ہیں؟ تھاٹس۔ بینگ کی سطح پر آپ کی خالص ترین سطح کون سی ہوتی ہے؟ اگر آپ نے یہ جاننا ہو تو کسی نومولود بچے کو دیکھیں اور پھر یہ غور کریں کہ کیا اس بچے کو وہ مسائل ڈسٹرب کر رہے ہیں جو اس وقت اس کی فیملی کے بڑوں کے بڑے بڑے مسائل ہیں؟ کیا یہ بچہ ان مسئلوں کی وجہ سے پریشان ہے جو ملک کی معیشت، سیاست اور سماجی سطح پر اتنے ہولناک دکھائی دے رہے ہیں کہ میڈیا 24 گھنٹے بریکنگ نیوز کی زد میں ہے، اور بچہ بینگ کی سطح پر ہے، زندگی کے زیر و بم کے ساتھ ہم آہنگ ہے؟ یہ بات آپ چاہے زبان سے تسلیم نہ بھی کریں تو بھی آپ کے اندر کوئی مقام ہے جو جانتا ہے کہ یہ بچہ کل زندگی اور ہیومن ایگزسٹنس کے اس سنگم پر موجود ہے جہاں صرف جوائے ہے، لطف ہے، آنند ہے۔ اس کا اندازہ کرنا ہو کہ آپ میں موجود زندگی یہ جانتی ہے کہ بچہ اس مقام پر ہے، تو اس سے کر لیں کہ کسی بھی ناکام سے ناکام اور نام نہاد کامیاب سے کامیاب انسان کو روک کر اس سے سوال کریں کہ اس کی زندگی کا بہترین دور کون سا رہا، تو وہ کہے گا بچپن۔ حتیٰ کہ وہ لوگ جن کا بچپن ناآسودہ ترین گزرا ہو وہ بھی اس وقت کا ذکر بڑے رومانٹک انداز سے کرتے ہیں جب وہ تتلیوں کے پیچھے بھاگتے، گلی ڈنڈا کھیلتے اور بال کے پیچھے دوڑتے اپنا دن بتاتے تھے۔ اب غور کریں کہ اس بچے کے پاس زندگی کا وہ کون سا گر تھا جس سے اس کے بڑے محروم ہیں؟ اس کے پاس تھاٹس اور میموری کی شکل میں پاسٹ سٹور نہیں تھا، یا کہہ لیں کہ وہ تھنکنگ مائنڈ نہیں رکھتا تھا۔ سوچیں، جب آپ شراب پیتے ہیں تو اس میں آخر ایسی کون سی لذت ہے جو آپ کو بار بار شراب نوشی پر مجبور کرتی ہے؟ ایک ہی چیز کہ کسی طرح آپ کا سوچتا دماغ تھوڑی دیر چپ کر جائے۔ وہ شخص جسے رات کو سونے کے لیے روزانہ نیند کی گولی درکار ہے، اس کا مسئلہ کیا ہے؟ یہی نہ کہ کسی طرح اس کا سوچتا دماغ اپنی اس سرگرمی سے باز آ جائے۔ شاپنگ کو زندگی کی بنیادی ترین ضرورت سمجھنے والی خاتون کا مسئلہ کیا ہے؟ ٹی وی سکرین کے سامنے بدھو بنے بیٹھے لوگوں کا المیہ کیا ہے؟ یہ انٹرٹینمنٹ کے نام پر جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ کسی طرح بس آپ کا سوچتا دماغ شانت ہو جائے، اور وہی سوچتا دماغ جو چاروں طرف سے بس اذیت ہی آپ کی زندگی میں لا رہا ہے، اسی کو آپ نے وہ ٹول قرار دے رکھا ہے جس سے آپ ایگزسٹنس کے، لائف کے سارے مسائل حل کر دینا چاہتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ وہ جو آپ کی سب سے بڑی بیماری ہے اس سے دوا لینے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ وہی جو آج کے انسان کے ساتھ ہو رہا ہے، وہی جو فیملیز میں چل رہا ہے، وہی جو سماجوں کے ساتھ ہو رہا ہے، وہی جو ملکوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ دنیا میں موجود انسانوں کی اکثریت وہ ہے کہ جو اپنے ہی تھاٹس کے بنائے بندی خانوں میں قید زندگی گزار دیتی ہے۔ وہ کبھی اس تنگ نائے اپنے ہی ذہن کی تخلیق کردہ متشخص احساس سے ذات سے ماورا نہیں ہو پاتے جو ان کے ماضی سے مشروط ہے، کنڈیشنڈ ہے۔ آپ میں اور دنیا کے ہر انسان میں شعور کی ایک گہری سمت بھی موجود ہے جو سوچوں، تھاٹ سے کہیں گہری ہے، اور شعور کی یہی گہری سطح اصل آپ، ریئل یو ہو۔ آپ اسے کہہ سکتے ہیں حضوری، پریزنس، آگہی، اویئرنس یا انکنڈیشنڈ کانشسنس،
غیر مشروط شعور۔ قدیم مذہبی تعلیمات میں اسے کہا گیا ہے آپ کے اندر موجود کرائسٹ یا آپ کی بدھا نیچر۔ جب آپ اپنے اندر موجود اس ڈائمنشن کو پا لیتے ہیں تو اس لٹل می، اس بونی اناج سے آزاد ہو جاتے ہیں، تو آپ اور دنیا اس دکھ سے آزاد ہو جاتے ہیں جو آپ خود پر اور اپنے ارد گرد موجود لوگوں پر تھوپ رہے ہیں۔ وہ بونی انا جو اس وقت آپ کی زندگی کو چلا رہی ہے۔ محبت، خوشی، تخلیقی وسعت اور اندر کا سکون کبھی آپ کی زندگی میں نہیں آ سکتا جب تک آپ شعور کی اس غیر مشروط سمت کو اپنے اندر نہیں پا لیتے۔ اگر آپ اس سمت سے آگاہ ہو جاتے ہیں، چاہے کبھی کبھار حادثتاً ہی، تو دیکھیں گے کہ آپ کے ذہن میں تھاٹس محض تھاٹس ہی ہیں۔ اگر آپ نے اپنے ذہنی جذباتی رد عمل جس وقت وہ ابھرے اس وقت ان کے پیٹرنز کو دیکھا، ان کے شاہد، گواہ، وٹنس بنے، تو اس کا صاف مطلب ہے کہ شعور کی یہ سمت آپ میں ابھر رہی ہے، کیونکہ یہی آگہی، یہی شعور ہی وہ میدان ہے جس میں یہ تھاٹ یا ایموشن، سوچیں اور جذبات واقع ہوتے ہیں۔ یہی وہ لازمان باطنی گنجائش ہے، انر سپیس ہے، جس میں وہ سب خود کو آشکار کرتا ہے جسے آپ اپنی زندگی کہتے ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ آپ کیا ہیں؟ یہ جسم جسے فزیکلی آپ دیکھ چھو سکتے ہیں، یا وہ تھاٹس جو آپ کے دماغ میں میموری کی شکل میں سٹور ہیں، یا وہ ایموشنز جن کا آپ اظہار کرتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ تینوں آپ کے ہیں، آپ نہیں ہیں۔ ٹولے کہتا ہے کہ آپ اصل میں پوائنٹ آف کانشیسنس ہیں، آگہی ہیں، وہ جو دیکھنے والا ہے اس جسم کا، وہ ہیں آپ، وہ جو دیکھ رہا ہے کہ ذہن میں کیا خیالات گردش کر رہے ہیں، وہ جو دیکھ رہا ہے کہ آپ کے جسم میں اس وقت کس قسم کے ایموشنز، احساسات موجود ہیں۔ ہم اگر تھوڑا سا اپنی زبانوں پر غور کریں تو بھی یہ حقیقت ہم پر کھل سکتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ میرے دماغ میں اس وقت یہ تھاٹس ہیں، جیسے میں کہتا ہوں کہ میرے جذبات اس وقت یہ ہیں، جیسے میں کہتا ہوں کہ یہ میرا جسم ہے۔ آپ نے ان فکروں پر غور کیا؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں کہوں یہ میرا موبائل ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میری گاڑی ہے۔ ان دونوں قسم کے فکروں میں کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ ہم انسانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جس چیز سے زیادہ آئیڈینٹیفائیڈ ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو نتھی کر لیتے ہیں، اس کے اور اپنے درمیان فاصلے کو کم سے کم کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ اپنے بیسٹ فرینڈ کے ساتھ جا رہے ہیں اور کوئی شخص آ کر آپ کے دوست کو بلا وجہ گالی دے دیتا ہے، تو آپ اس پر ناراض صرف آپ کا دوست نہیں ہوگا بلکہ آپ بھی اتنے ہی ناراض ہوں گے، جبکہ بینگ کی سطح پر دو انڈیویجولز کا یہ آپسی معاملہ تھا، مگر ایک کے ساتھ آپ کی آئیڈینٹی جڑی ہے۔ اسی طرح کوئی شخص آپ کے مکان کی دیوار کو آ کر توڑنا شروع کر دیتا ہے تو آپ اس سے لڑنا شروع کر دیں گے، جبکہ معاملہ اس شخص کا اور اینٹوں کا آپسی ہے، کیونکہ اس مکان کے ساتھ میرا مکان کا ایک لیبل آپ نے دماغ میں محفوظ کر رکھا ہے، اس لیے اب اس مکان پر حملہ بھی آپ پر حملہ لگ رہا ہے۔ یہ آئیڈینٹیفیکیشن اس وقت اور بھی شدید ہو جاتی ہے جب بات میرے جذبات، میرے خیالات، میرے جسم کی آتی ہے۔ یہاں مجھ اور میرے جسم میں، میرے خیال اور میرے جذبات کے درمیان فاصلہ اتنا کم ہو جاتا ہے کہ اکثر لوگ اس فاصلے، اس گیپ کو دیکھ ہی نہیں پاتے۔ اس لیے آپ کہتے ہیں مجھے بھوک لگی ہے، حالانکہ وہ بھوک آپ کو نہیں لگی، آپ کو لگ بھی نہیں سکتی کہ آپ تو غیر مادی کانشیسنس ہو جس کا یہ جسم ہے۔ بھوک جسم کی شکل میں موجود آپ کے پاس اس فیکٹری یونٹ کو انرجی کی سپلائی کا معاملہ ہے۔ اسی طرح آپ کہتے ہیں کہ میں غصے میں ہوں، میں اداس ہوں یا میں پریشان ہوں، حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہوتی ہے۔ آپ کے دماغ میں کچھ خیالات پیدا ہوئے، اگر وہ غصے کے خیالات ہیں تو جسم میں ان کا اظہار
गुस्से की शक्ल में होता है। इसी तरह आप कहते हैं कि मैं मुसलमान हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं कम्युनिस्ट हूँ, या मैं लिबरल हूँ, या मजहबी हूँ, तो ये आप नहीं हो, बल्कि ये आपका माजी जो मेमोरी की शक्ल में है, उसने आपके दिमाग को कंडीशन कर दिया है। आप असल में क्या हो? आप हकीकत में वो कॉन्शियसनेस हो जो ये देख रहा है कि अब दिमाग में एक ख्याल आया, वो गुस्से का था, तो जिसमें अब वो गुस्से की हालत पैदा हुई, जिसे आप एक जज्बे के तौर पर अपने जिस्म में महसूस कर रहे हैं। आप वो आगही हैं जो इस आगही से आगाह है कि ये आपका जिस्म है, ये दिमाग है। अब इसको यूं देखें कि एक अजनबी आपके साथ बैठा है, कोई आकर उसे गाली देता है, आप में कोई रिएक्शन नहीं जागता। फर्ज करें कोई थोड़ा बहुत जानने वाला है, उसे आकर कोई गाली देता है, अब थोड़ी बहुत बेचैनी पैदा होगी। लेकिन फर्ज करें कि कोई बहुत ही करीबी अजीज रिश्तेदार, बाप या भाई वगैरह आपके पास बैठा है और कोई आकर उसे गाली देता है, तो आप क्या करते हैं? आप उस पर बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करते हैं जैसे वो शख्स जिसे गाली दी गई है। इसी तरह सिर्फ आप बैठे हैं, कोई आकर गाली देता है, तो आपका रिएक्शन बहुत ही गुस्सीला होगा। इन चारों मिसालों में क्या हो रहा है? आप जिससे जितना ज्यादा आइडेंटिफाइड हैं, उतना ज्यादा रिएक्शन देंगे। जब अजनबी बैठा था तो उसके और आपके दरमियान मौजूद आइडेंटिफिकेशन कमजोर तरीन थी। जब आपको किसी ने आकर गाली दी तो आप और आपके जिस्म के दरमियान आइडेंटिफिकेशन मजबूत तरीन थी। पहली सूरत में आपके और अजनबी के दरमियान गैप मैक्सिमम था, आखिरी सूरत में ये गैप मौजूद ही नहीं था, इसलिए आपका रिएक्शन हर सूरत में मुख्तलिफ आया। अगर आप अपने और अपने जिस्म में या अपने और अपने थॉट्स में ये गैप तख्लीक कर सकते हैं, तो फिर आपको दुनिया की कोई भी चीज दुख या गम नहीं दे सकती। टूले इसको कहता है इनर स्पेस या बातनी खला से एक होना। ये शऊर की आला तर हालत है जिसमें आप जिस्म और जहन से मावरा होकर उस बीइंग का एक हिस्सा बन जाते हो जो कुल जिंदगी है। एक अरसे तक इंसान अपने थॉट्स से भी ज्यादा अपने जिस्म से आइडेंटिफाइड रहा, जिसे हम सर्वाइवल एज कहते हैं। जब इंसान सर्वाइवल के उस दौर से बाहर आया तो उसने सोचों के साथ खुद को एक कर लिया। आज का इंसान अपनी सोचों को अपना आप समझता है और यही इसका सबसे बड़ा अलमिया, सबसे बड़ा मसला है। आप देखें कि आपकी एग्जिस्टेंस जब माइंड से आइडेंटिफाइड होती है तो खुशी और गम के साइकिल में फंसी जिंदगी कितनी आर्जी और गैर मुस्तकिल हो जाती है। मिसाल के तौर पर दो अजनबी बैठे हैं जो एक दूसरे को नहीं जानते, तो वो एक दूसरे के लिए कोई मसला नहीं, लेकिन अगर दोनों को बता दिया जाए कि वो खानदानी दुश्मन हैं, तो अब उनके जहन में उभरने वाली सोचें उनका जीना कैसे हराम कर देंगी। बिल्कुल वैसे ही आपको बताया गया है कि आप मुस्लिम हो, ईसाई हो, हिंदू हो, बिल्कुल ही वैसे आपको बताया गया है कि आप इंडियन हो, पाकिस्तानी हो या अमेरिकन हो। अब इन थॉट्स को आपने कितना अहम समझ लिया कि इनकी बुनियाद पर इंडिया पाकिस्तान को, पाकिस्तान इंडिया को, रूस अमेरिका को, अमेरिका शायद बाकी के सारे मुखालफिन को दुनिया से मिटाने पर तैयार है। आप बतौर फर्द अपने आज के इन सारे मसलों को देखें जिनसे आप आज गुजर रहे हैं, सब के सब माइंड में उभरी किसी सोच से निकले हैं। आप चूंकि माइंड से शिद्दत से आइडेंटिफाइड हैं, इसलिए आपने उन्हें अपने मसाइल बना लिया। इसी को टूले कह रहा है कि हम अपने दिमाग के कैदी हैं, जबकि हमारे पास दिमाग के इस महदूद दायरे से बाहर भी जिंदगी का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला, एक नामुख्ततम स्कोप मौजूद है। सोचों के धारे में बेपनाह बहाव मोमेंटम होता है जो आपको आसानी के साथ अपने साथ बहा ले जाता है। हर थॉट, हर ख्याल यही कहता है कि वो बहुत अहम है। हर ख्याल चाहता है कि आपकी मुकम्मल तवज्जो उसी की तरफ रहे। मैं आपको नई रूहानी मश्क बताऊं, अपने थॉट्स को, इन ख्यालात को कभी संजीदा मत लें। डोंट टेक योर थॉट्स टू सीरियसली।
पहले भी जिक्र हो चुका है कि हम थॉट्स के साथ कैसे खुद को एक कर लेते हैं, और यही इंसान का आज का सारा मसला है। इसका हल है कि थॉट्स को ज़्यादा सीरियस ना लिया जाए, क्योंकि जब आप थॉट्स को संजीदा लेते हैं तो उसमें एक मोमेंटम बन जाता है, और वो मोमेंटम इतना ज़ोरदार होता है कि आपकी बीइंग, आपकी हस्ती उसमें तिनके की तरह बह जाती है। मिसाल के तौर पर एक शख्स ने आकर आपको गाली दी, आपके दिमाग ने उस गाली का मतलब निकाला और बदले और जवाबी गाली के थॉट्स सोचे। इस पर अब दो किस्म के रद्द अमल हो सकते हैं। फर्ज करें जिस शख्स को गाली दी गई वो बेदार इंसान है, वो कोई सूफी है, इनलाइटेंड शख्स है, तो उसका रद्द अमल क्या होगा? वो देखेगा कि उसके दिमाग में ये थॉट्स पैदा हो रहे हैं, उसके और उसके जहन के दरमियान एक गैप मौजूद होगा। उस गैप की वजह से उसका रिएक्शन बस ऐसे ही होगा जैसे साथ बैठे किसी शख्स को गाली दी गई हो। लेकिन अगर जिसको गाली दी गई हो वो गैर बेदार और दिमाग से आइडेंटिफाइड शख्स है, तो इस सूरत में रिएक्शन बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। दिमाग इस गाली को सुनने के बाद जवाबी गाली या थप्पड़ या मुक्का मारने का थॉट सोचेगा। अब चूंकि उस शख्स और जहन के इस थॉट के दरमियान कोई गैप ही नहीं है, तो वो उस पर वैसे ही अमल करेगा जैसे ये सोच उसके दिमाग ने नहीं, उसने क्रिएट की है, और वो जो रिएक्शन देगा वो आपको मालूम है ही। अब आप थोड़ा सा गौर करें कि आप थॉट्स के साथ एक हैं। थॉट की नेचर ये है कि इसे जब आपका ये गहरा साथ मिल जाता है तो ये बहुत ताकतवर हो जाता है। अब हर थॉट ही आपको कहता मिलेगा मैं अहम हूँ, और साइंस कहती है कि हमारे जहन में दिन में 60 से 80 हज़ार औसतन थॉट्स पैदा होते हैं। अब अगर 80 हज़ार थॉट्स रोजाना आपको ये बता रहे हों कि हम अहम हैं और तुम ये करो और तुम वो करो, तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? एक अलमिया, वही अलमिया जो आप देख रहे हैं। एक दिन के अखबारात को उठाकर देख लें, एक दिन का बैठ के टीवी पे खबरें सुन लें, अपने घरों को, दफ्तरों को, बाजारों को देख लें और छोड़ें, अकेले बैठ जाएं 2 दिन तक। आपका दिमाग ही आपको पागल कर देने के लिए काफी है। क्या ये हमारा आज का सबसे बड़ा मसला नहीं है? तूले यही कह रहा है कि मेरी नजर में आज के दौर का अगर कोई सबसे बड़ा मसला है तो वो है सोचता दिमाग, और आज के दौर की अगर कोई सबसे बड़ी रूहानी मश्क हो सकती है तो वो ये कि आप थॉट्स को संजीदा लेना छोड़ दें। सोचें, इंसान अपने तसव्वुरात के बंदी खानों का कैदी कितनी आसानी से हो जाता है। इंसानी दिमाग की ख्वाहिश है जानना, समझना, कंट्रोल करना, और इसी ख्वाहिश में ये अपनी आरा, अपने नुक्ते नज़र को गलती से सदाकत मान लेता है, सच मान लेता है। माइंड कहता है कि जो कुछ है यही है जो मैं कह रहा हूं। आप अपनी जिंदगी की तशरीह कैसे करते हैं? किसी और के रवैये को क्या मानी देते हैं? किसी भी सिचुएशन पर क्या राय बनाते हैं? कैसे उसे जज करते हैं? ये महज आपके दिमाग के एक थॉट से ज्यादा कुछ नहीं है। ये चीजों के देखने के मुताद्दिद तनाजुरों में से बस एक तनाजुर, एक पर्सपेक्टिव है। हकीकत जानना चाहते हैं तो आपको इस कंडीशन दिमाग से ऊपर उठना होगा। ये जो आप जानते हैं ये ख्यालात के एक गट्ठे के सिवा और कुछ नहीं। दूसरी तरफ जो हतमी सदाकत है वो एक मुत्तहद कुल, एक यूनिफाइड होल है जिसमें तमाम अशिया वहां मरबूत हैं, जहां कुछ भी, कोई भी चीज बेजाते ही और अपनी ही जात के लिए नहीं। सोचें, थॉट्स सच को बांट देते हैं, रियलिटी को काट देते हैं। ये तसव्वुरात हकीकत को मुंतशर कर देते हैं। सोचता दिमाग, थिंकिंग माइंड एक मुफीद और ताकतवर आला है, मगर ये जब आपकी मुकम्मल जिंदगी को घेर लेता है, जब आप ये एहसास खो देते हैं कि वो शऊर के जो आप हो ये बस उसका एक छोटा सा पहलू है, तो उस वक्त ये आपका कैद खाना बन जाता है। जदीद इंसान का सबसे बड़ा मसला उसका जहन है, उसका थिंकिंग माइंड, और अलमिया ये है कि इंसान
खुद को इसी थिंकिंग माइंड से इतना आइडेंटिफाइड कर चुका है कि वो इसी दिमाग को ही मसाइल का हल करने वाला समझता है। बीमारी जब डॉक्टर का रूप धार लेती है तो तब क्या होगा? वही जो इस वक्त इंसान के साथ हो रहा है। ईमानदारी से खुद से पूछिए, क्या आपकी जिंदगी पुरसकून है? क्या आपकी दफ्तरी जिंदगी खुशी पैदा कर रही है? क्या आपकी फैमिली लाइफ को आप सुखी लाइफ कह सकते हैं? क्या आपकी समाजी जिंदगी ऐसी है कि जिस पर पीस का, शांति का लेबल आप लगा सकें? अब एक सेकंड के लिए रुकिए और देखिए। एक तरफ आप ये कहते हैं और सच कहते हैं कि इंसानी जहन ने ऐसे ऐसे मुहैयर और अकूल कारनामे सरअंजाम दिए हैं कि अमलन उसने दुनिया का नक्शा बदल दिया है। दूसरी तरफ आपकी जिंदगी में सुकून, सुख, आश्ती नाम की कोई चीज नहीं है। कभी इस दो रंगी को आपने नोटिस किया? जमीन पर अशियाए तायुश और इंसानी मददगार मशीनें इतनी हैं कि प्रैक्टिकली आज का इंसान सबसे सुखी, आसान जिंदगी गुजार रहा है। लेकिन जब फर्द को देखते हैं, फैमिली को और समाज को देखते हैं, तो दुनिया की हर कौम, दुनिया का हर मुल्क, दुनिया का हर फर्द इस बात पर रो रहा है कि हालात खराब हो रहे हैं। गरीब मुल्क गुर्बत के मसाइल पर कुढ़ रहे हैं, तो अमीर और सुपर पावर रियासतें आलमी मसाइल या फिर आलमी साजिशों के गर्दाब में फंसी हैं। टूले कहता है कि इंसान इस वक्त खुद को खुद का दिमाग समझता है, और रेने डिकार्ट ने तो कई दिहाइयां कबल ये ऐलान करके फलसफे की दुनिया का अपनी तरफ से एक नाकाबिले इनकार सबूत पेश कर दिया था कि मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, आई थिंक दैट्स वाई आई एम। लेकिन रेने डिकार्ट का यह बयान असल में इंसानी एग्जिस्टेंस की नेचर का बयान नहीं है, बल्कि उस एरर का, उस गलती का बयान है जो इंसान को अपनी एग्जिस्टेंस के हवाले से लाहक हुई। सोचें, वो दिमाग जिसे आप अपना आप समझते हैं वो है क्या? इंसानी दिमाग की बुनियादी तरीन ख्वाहिश है जानना, समझना, कंट्रोल करना, और इसी को ज़हन इंसान ने हतमी सदाकत मान लिया है। दिमाग कहता है कि सच वही है जो मैं कह रहा हूं। आप जिंदगी को कैसे समझते हैं, दूसरों को कैसे परखते हैं, सिचुएशन पर क्या राय रखते हैं, चीजों को कैसे जज करते हैं, ये सब थॉट्स हैं, और थॉट कंडीशन दिमाग का फेल है। कंडीशन का मतलब यह है कि आप जो सोचते हैं वो आपके दिमाग का कोई ओरिजिनल फेल या प्रोसेस नहीं होता, बल्कि सीखा सिखाया होता है। अब भारत में पैदा हुए, हिंदू फैमिली में पैदा हुए, किसी खास शहर में पैदा हुए, एक खास जबान बोलने वाले माहौल में पैदा हुए, वहीं से आपके लेबल निकले हैं, वहीं से आपकी अच्छाई बुराई का कंसेप्ट निकला है, वहीं से आपका तसव्वुर खुदा आया है, वहीं से आपके रवैये निकले हैं। अब अगर फर्ज करें कि किसी भारतीय हिंदू घर में पैदा होने वाले बच्चे को किसी पाकिस्तानी मुस्लिम घर में पाला, पोसा और बड़ा किया जाता, तो उसके माइंड की कंडीशनिंग बिल्कुल ही और होती। टूले कहता है कि ये कंडीशन दिमाग है इस वक्त दुनिया का असल मसला। आपके डिप्रेशन, आपके दिल के दौरों, आपके हाई लो बीपी के पीछे यही कंडीशन माइंड है। आपकी फैमिली लाइफ में मौजूद मसाइल की बुनियाद यही कंडीशन दिमाग है। आपके मुल्क के दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात को यही कंडीशन दिमाग तय कर रहा है। जबकि आप हकीकत में आप उस वक्त होते हैं जब आप इस कंडीशन माइंड से ऊपर उठ जाते हैं। फर्ज करें एक भारतीय है या पाकिस्तानी है, वो कंडीशन दिमाग से मावरा है, तो वो कैसे और किस बुनियाद पर एक पूरी कौम से नफरत कर सकेगा? फर्ज से फैमिली और फैमिली से समाज तक जो भी आपकी नफरतें हैं, मोहब्बतें हैं, दुख हैं, मसले हैं, वो इसी कंडीशन माइंड के मसले हैं, वो आपके मसले नहीं हैं। ये मसले आपके मसले इसलिए बन गए हैं क्योंकि आपने माइंड को और खुद को एक मान लिया है, जबकि हकीकत यह है कि माइंड आपको हासिल बेशुमार ताकतों में से बस एक ताकत है। लेकिन आप इस एक ताकत से ऐसे नथी हो गए, ऐसे एक हो गए कि रेने डिकार्ट आपको सच लगता है।
रेने डिकार्ट का ये कारनामा नहीं कि उसने इंसानी एग्जिस्टेंस को सबसे बड़ा सच दरियाफ्त करके दिया था, बल्कि डिकार्टे का असल काम ये है कि उसने इंसानी एग्जिस्टेंस की सबसे बड़ी एरर को बयान किया था। टूले कहता है कि माइंड ख्यालात के गट्ठे के सिवा और कुछ नहीं। दूसरी तरफ जो हतमी सदाकत है वो एक मुत्तहद कुल, एक यूनिफाइड होल है जिसमें तमाम अशिया बाहम मरबूत हैं। दिमाग आपको बताता है कि ये आप हो, ये वो है, ये मैं हूं, ये तू है, ये मैं हूं, ये मकान है, ये मेरा मुल्क है, ये दुश्मन मुल्क है, ये मेरी कौम है, ये मुखालिफ कौम है, ये मेरी जबान है, ये फलां की जबान है। माइंड ऐसे ही काम करता है। ये पहले मुखालिफ को क्रिएट करता है, तब इसे मुवाफिक की पहचान मिलती है। ये तो आपके माइंड की नेचर है, मगर जिंदगी की नेचर में ये तकसीम नहीं है। थोड़ा सा गौर करें कि आपने जो सांस अभी ली है, इसमें जो ऑक्सीजन इस्तेमाल की है, हो सकता है वो दुनिया के किसी और ही कोने में मौजूद किसी दरख्त से खारिज हुई हो, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपने इस वक्त खारिज की है वो हो सकता है कि दुनिया के किसी और ही खित्ते में किसी दरख्त ने इनहेल की हो। जिंदगी यूं ही बाहम मरबूत है, जुड़ी हुई है, मगर इस मरबूत कुल को दिमाग परसीव नहीं कर सकता क्योंकि इसकी बुनियादी नेचर डुअल है, दुई है। टूले कहता है कि सोचें सच को बांट देती हैं। आप सिर्फ सोचता दिमाग नहीं है, पॉइंट ऑफ कॉन्शियसनेस है, वो शाहिद, वो विटनेस जो देख रहा है कि दिमाग इस वक्त ये सोच रहा है। जब आप इस मकाम शऊर से जुड़ते हैं तो उस वक्त आप कुल बीइंग का एक हिस्सा होते हैं, कुलज़म का एक कतरा जो कुलज़म से अलग नहीं। सोचें बस आपकी बीइंग का एक छोटा सा मुनहनी सा पहलू है, लेकिन जब आप सोचों को अपना आप मान लेते हैं तो यही मुफीद टूल यानी आपका दिमाग आपका कैद खाना बन जाता है। हिकमत या विजडम ख्यालात की पैदावार नहीं है, गहराई में जानना है विजडम, जो तब पैदा होती है जब आप किसी शख्स या किसी चीज को अपनी मुकम्मल तरीन तवज्जो देते हैं। तवज्जो, अटेंशन आपकी अव्वलीन जहानत है जो खुद शऊर, कॉन्शियसनेस इन इटसेल्फ है। ये उन रुकावटों, उन दीवारों को तोड़ देती है जो आपके तसव्वुरात उठाते हैं, और जब ये होता है तो उस वक्त आप ये जान पाते हैं कि कुछ भी अपने लिए और अपनी ज़ात में मौजूद नहीं। ये वो मकाम है जहाँ देखने वाला और देखना दोनों एक ही फील्ड ऑफ अवेयरनेस में आ जाते हैं। एहसास से बेगानगी, सेपरेशन ही वाहिद गम है, और ये वो मकाम है जो इस एहसास से बेगानगी के गम का इलाज है। टूले कहता है कि विजडम, हकीकी दानिश जहन का खासा नहीं है। जहन सिर्फ लेबल जीता है, और जहन लेबल देता ही इसीलिए है ताकि उसे उस चीज को जानना ना पड़े। मिसाल के तौर पर आप एक शख्स को मिलते हैं, उससे उसका नाम, उसकी कौमियत, उसका मजहब, उसकी नस्ल, उसकी जबान पूछते हैं, और जो ही ये चंद टैग, चंद नाम, चंद लेबल आपके दिमाग में स्टोर हो गए तो उसी वक्त दिमाग ऐलान करता है कि वो शख्स जान लिया गया। आप सोचिए, क्या इन चंद लेबल से आपने एक बीइंग को, एक जिंदगी को, एक पूरे इम्कान को, एक पूरी दुनिया को समझ लिया? कैसे समझ सकते हैं? अब एक मिनट के लिए गौर करें, तवज्जो दें कि ये लेबल अगर आपके पास ना हो तो क्या कोई अनजान शख्स इतनी आसानी से जाना जा सकता है? फिर आपको तवज्जो, मुकम्मल तरीन तवज्जो, अटेंशन, फोकस देना होगा, खपना होगा, दरियाफ्त करना होगा, और इसी से हिकमत जन्म लेती है। जब लेबल से, जब नाम से, ढांचे से, हैत से मावरा होकर आप किसी चीज को जानते हैं तो वही है असल जानना, और ये काम मुकम्मल तवज्जो के बगैर हो नहीं सकता। टूले इसी तवज्जो को, मुकम्मल अटेंशन को अव्वलीन और बुनियादी जहानत का नाम देता है, और इसी को ही वो मकाम शऊर कहता है। आप अपने आप पर गौर करें, आप सारा दिन क्या करते हैं? लोगों को, चीज़ों को, सिचुएशंस को जज करते हैं। चंद लेबल्स के नाम पर कुछ मालूमात आपके जहन में स्टोर हैं जो आपकी ऐनक हैं,
और आप उसी ऐनक से लोगों को, चीजों को और सिचुएशंस को देखते हैं और अच्छे बुरे, गोरे काले, अपने बिगाने, दोस्त दुश्मन के खाने में फेंकते जाते हैं। ऑब्जेक्टिव अंदाज में भी अगर सोचें तो क्या ऐसे हकीकत जानी जा सकती है कि पहले ही आपने तासुब की ऐनक चढ़ाई हुई हो